Good morning, everyone. The next topic of Unit 3 is memory. The circuit or system designs need for data storage is called memory. A computer uses a number of memory devices of different technologies that may be semiconductor memories or magnetic memories. Memory organization. The basic element of semiconductor memory is flip-flop. Flip-flop can be used to store one bit of information. If we want to store n bit of information, then we have to use n number of flip-flops for the same. In memory, there are number of memory location in a memory chip. Each location is available for one word. One word means हर एक लोकेशन में एक वर्ड होगा जो n बिट्स का हो सकता है. सो साइज ऑफ मेमोरी चिप हम कैसे डिफाइन करेंगे? साइज ऑफ मेमोरी चिप हम लेंगे m क्रॉस n से. ठीक है, वेयर m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लोकेशन in memory and n represent the number of bits at each location. ठीक, तो हम m लोकेशन ले रहे हैं और हर एक लोकेशन में जितने भी बिट्स का वर्ड है उसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं. ठीक है, m क्रॉस n. m इज लोकेशन एंड n इज नंबर ऑफ बिट्स एट ईच लोकेशन. Block diagram of memory devices. Here is the block diagram for memory. For m cross n memory, there are address input, data input and data output. Address input is P. Memory device consists of m location and is defined by unique address, and therefore accessing any one of m location we need p inputs, where p is address line and m is equals to 2 raised to the power 2 to the power p. अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वी हैव एड्रेस लाइन्स 3, so total number of memory location will be 8. If we have 4 address lines, then total memory locations will be 16. 2 to the power 4, that is 16. Therefore P is address line, right? P is address line, M is number of locations. The number of input required to store the data into or read the data from any memory location is n. नंबर ऑफ इनपुट जो रिक्वायर्ड है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए मेमोरी लोकेशन में, दैट इज n. ठीक है, तो इससे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हर एक लोकेशन में जितने भी बिट्स हैं दैट इज n. For example, if we have 8 location of 4 bit each, then the memory will be 8 cross 4. In this block diagram, there is another input, that is control input, which is used to control the memory. Next is classification of memories. So memories can be classified in 2 different criteria. First is primary and second is secondary. Primary memory is RAM and ROM.
where ROM is classified as PROM, EPROM, EEPROM, and RAM is classified as static RAM, SRAM, dynamic RAM, that is DRAM, and cache. In secondary memory, we can classify secondary memories as disk drive and tap drives. फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क में हमारा हो सकता है फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क, CD, ठीक है. तो दीज आर सेकेंडरी मेमोरीज. सो मेमोरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी इज रैम और रोम, ठीक है. रैम के भी क्लासिफिकेशन है, रोम के भी क्लासिफिकेशन है. सेकेंडरी में हमारा आ जाएगा जो भी डिस्क हो गई या टैप्स हो गए, दीज आर सेकेंडरी मेमोरीज जो हम टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है मेमोरी को हम और भी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल. सो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल क्या है? द मेमोरी दैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. Information stored in this memory is lost when electrical power is off. ठीक है. तो जो हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी को जब तक उसमें इंफॉर्मेशन है, वो कब तक इंफॉर्मेशन उसमें रिटेन रहेगी? जब तक कि पावर ऑन है. जैसे ही पावर ऑफ होगा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड volatile memory. So example of volatile memory is RAM. Second है in non volatile memory the information once stored it remains forever. ROM is a non volatile memory. ठीक है. यहाँ पे अगर हम ऑफ भी कर देते हैं स्टिल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी उसमें. Next is read only memory. Read only memory or ROM. It is used to store information which is permanent or semi-permanent in nature. This is read memory, read only memory. ठीक है. तो द परमानेंट ग्रुप इंक्लूड्स, इसको भी हम दो पार्ट में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज टू स्टोर परमानेंट और सेमी परमानेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो परमानेंट इंक्लूड्स मास रोम एंड प्रोम एंड सेमी परमानेंट ग्रुप इंक्लूड्स EPROM एंड EEPROM. मास रोम, ठीक है. मास रोम इज टाइप ऑफ परमानेंट ग्रुप. मास रोम प्रोग्रामिंग इज डन थ्रू मास्किंग एंड मेटलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है. तो मास रोम किस टाइप का हो गया? एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही प्रोग्राम होगा. ये एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही प्रोग्राम होगा, तो उसको हम बोलेंगे मास्क प्रोग्राम. ठीक है. इसमें मास्किंग या मेटलाइजेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं. सो यूज़र कैन नॉट राइट इन टू दिस मेमोरी. ठीक है. री राइट नहीं कर सकते हैं इसमें हम. सेकेंड इज प्रोम. ठीक है. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और प्रोग्रामेबल रोम. इन दिस यूज़र कैन प्रोग्राम द प्रोम. ठीक है. अगर हम बोल रहे हैं यूज़र कैन प्रोग्राम, मतलब क्या हो सकता है? यूज़र जो है या प्रोग्रामर जो है उसमें हम उसको प्रोम को राइट कर सकता है. इट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड, इट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस. यूज़र कैन नॉट री राइट दिस मेमोरी. ठीक है. री राइट इसमें पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं सेमी परमानेंट ग्रुप. इसमें हमने दो टाइप देखे, EPROM एंड EEPROM. EPROM इज इरेजेबल, प्रोग्रामेबल,
read only memory. User can rewrite this memory many times. ठीक है, यहाँ पे rewrite possible है. Program erasing is done using ultraviolet light through a window over the memory chip. This window is exposed in UV light. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है, जो मेमोरी है, दैट कैन बी रीराइट मैनी टाइम्स. ठीक है, रीराइट इज पॉसिबल है यहाँ पे, जबकि हमारे प्रीवियस वाले में पॉसिबल नहीं था. यहाँ पे पॉसिबल है. और यहाँ पे अगर हमें कुछ प्रोग्राम को इरेज करना है तो वो कैसे होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू होता है. मेमोरी चिप के ऊपर एक विंडो होगी, उसके ऊपर क्या फॉल होता है, उसके ऊपर अप्लाई होती है अल्ट्रावायलेट लाइट. ठीक है, तो यूवी लाइट उसमें एक्सपोज होती है, उसके थ्रू यहाँ पे इरेजिंग पॉसिबल है. सो एंटायर इंफॉर्मेशन इज इरेज्ड एट वंस व्हेन एक्सपोज्ड इन यूवी लाइट. ठीक है, तो ये EEPROM इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. नेक्स्ट है EEPROM. ठीक है, EEPROM क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोम भी बोल सकते हैं. इंफॉर्मेशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट द रजिस्टर लेवल रादर देन इरेजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड बाइट बाय बाइट. ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके इरेज करते हैं. ठीक है, ऑल्टर करना है, अगर हमें कुछ चेंजेस करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ठीक है, अगर प्रोग्राम हमें कुछ ऑल्टर करना है तो वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट रजिस्टर लेवल. तो इंफॉर्मेशन जो भी है दैट कैन बी इरेज्ड बाइट बाय बाइट. बाइट इज 8 बिट. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है, एक हमने देखा वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल. दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस. ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरीज. A temporary storage that can be read from or written into by the user. ठीक है, रैम किस तरह का होगा, रैम टेम्परेरी स्टोरेज कहलाएगी, जिसमें इट कैन बी रीड और राइट बाय द यूज़र. इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी. मैंने बताया था कि रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है, तो रैम दिस इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी. हेयर एवरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड इंडिपेंडेंटली. ठीक है, रैंडमली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी. फर्स्ट इज SRAM एंड सेकेंड इज DRAM. तो SRAM इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड DRAM इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम और DRAM are relatively slower and low cost memory. ठीक है, SRAM से slower होता है ये और low cost memory है. It is used for main memory. Contents are constantly refreshed 1000 times per second. तो इसका यहाँ पे एक ड्रॉबैक यही रहता है DRAM का, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है इसको बार बार, है ना, कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है इसको. ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है. तो इसकी वजह से स्पीड स्लो होती है इसकी. एक्सेस टाइम है 60 to 70 नैनोसेकेंड. सेकेंड इज स्टैटिक रैम. स्टैटिक रैम इज ऑल्सो कॉल्ड SRAM. कैरेक्टराइज बाय हाई स्पीड एंड हाई कॉस्ट. ठीक है, DRAM के केस में हमने देखा लो स्पीड एंड लो कॉस्ट, बट अगर हम SRAM को देखें, SRAM इज हाई स्पीड एंड हाई कॉस्ट. यहाँ पे हम 6 ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं टू स्टोर द डाटा. इसमें 6 ट्रांजिस्टर का सेल हम यूज़ करते हैं SRAM में फॉर स्टोरेज पर्पज. इट कैन एक्सेप्ट 1 कमांड एंड ट्रांसफर 1 वर्ड ऑफ डाटा पर क्लॉक साइकिल.
Next is digital ICs 2716 and 2732. So digital IC 2716 is NMOS 16 kilobit UB EEPROM and M2732 is 32 kilobit UB EEPROM. The M2716 is erasable and electrically programmable memory EEPROM. The transparent window allows the user to expose the chip to ultraviolet light, which is used to erase the bit pattern. Here, this is the IC configuration of 2716 IC. Total 24 pins are there. Here A0 to A7 are address lines, A0 to A10 are address line, VCC is power supply, VPP is program supply voltage, G is output enable, EP is chip enable. ठीक है, chip enable और chip select is same. And Q0 to Q7 यहाँ पे 8 पिन नंबर Q जैसे हम देखें पिन नंबर 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 और 17 ये डाटा इनपुट के लिए है. ठीक है, VSS इज ग्राउंड, VCC इज पावर सप्लाई, VPP इज प्रोग्राम पावर सप्लाई, A0 to A10 are address lines, EP is chip select or chip enable signal which is used to enable the chip. So this is all about memory and memory organization. Thank you.